Good evening to one and all present here with us today. Hope everyone is staying home and being safe. On the occasion of World Hepatitis Day, Gastrocare Hospital has taken an initiative to shed light on the lesser known facts about the disease. We have with us the renowned Dr. Suresh Jinjuwadia, Chief Gastroenterologist at Gastrocare Hospital. Good evening, sir. Thank you for your valuable Good time. evening, Hope you are Mudra. doing well. Yeah, good evening. So, can you please give us some information about yourself? Can our audience know something about you? Yeah, on this auspicious day of World Hepatitis Day, I welcome all the listener and I wish them a long, healthy life. I'm Dr. Suresh Jinjuwadia, Chief Gastroenterologist at Gastrocare Hospital, Vadodara. I am practicing as a gastroenterologist, hepatologist, that is पेट और लीवर के रोगों के स्पेशलिस्ट की तरह एक आई एम practicing here for last about 30 years. I have my MBBS and MD from Vadodara Medical College and then did my specialty DN gastroenterology from GB Pant Hospital, New Delhi. और अब ना लास्ट 30 साल से मैं बड़ौदा में प्रैक्टिस कर रहा हूँ. Great. So, coming to hepatitis, can you tell us what exactly hepatitis is? Yeah, this is a very good question. Hepatitis means swelling in the liver. Whenever we say itis, that means swelling. So जब liver में swelling आ जाती है, उसको hepatitis बोलते हैं. But this is purely a term which is used by doctors to explain the hepatitis. Okay. So, what liver के body के अंदर क्या-क्या various functions होते हैं? ना लीवर इज एन वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन बिकॉज जैसे आप जो भी खाते पीते हैं जो भी लेते हैं वो जब आपके आंत में से आंत में चला जाता है और आंत में से ब्लड में जाता है और वो सब फिल्टर लीवर में होता है. तो लीवर इज द प्राइमरी ऑर्गन वेयर ऑल दिस फूड स्टफ्स आर गोइंग. उसमें जो अच्छा है जो जरूरी है वो लीवर एक्सट्रैक्ट कर लेता है, नहीं जरूरी है उसको वहां से निकाल देता है. आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन ये सब का मेटाबॉलिज्म लीवर में ही होता है. आपकी जो एंटीबॉडी बनती है, एंजाइम्स बनते हैं, हार्मोन्स बनते हैं, ब्लड प्रोडक्ट जो होते हैं ब्लड को ठीक करने के लिए क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, ये सारे लीवर में बनते हैं. सेकंड फंक्शन डिटॉक्सिफिकेशन है, जो निकम्मी चीज होती है उसको लीवर शरीर में से निकाल देता है, उसको डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं. So it's a very important organ for health so far as the individual is concerned. Okay. तो हेपेटाइटिस और जॉन्डिस सेम होता है या वो डिफरेंट होता है? Vrunda, this is a very good question because many times we find that patient who has got some liver abnormality, they say that they have jaundice. Ideally, jaundice means yellowish discoloration of sclera where the bilirubin rises in the blood and gives a yellowish tint to your sclera. This can happen because of liver abnormality, this can happen because of bile duct abnormality, this can happen because there is something wrong with the blood. So it is not equivalent to liver swelling. Hepatitis means swelling in the liver, जिसमें लीवर के सेल होते हैं वो किसी वजह से कोई कॉज से डैमेज हो जाते हैं, उसमें स्वेलिंग आ जाती है और वो या तो क्लिनिकली पेशेंट को सिम्टम्स करती है या तो उनके ब्लड में ट्रांसअमाइनेजेस होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, वो सिंपल बढ़ जाते हैं. जैसे पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होती है बट दे गो फॉर सम ब्लड टेस्ट फॉर वन और द अदर रीजन और दे फाइंड के देयर ट्रांसअमाइनेजेस दैट इज एसजीओटी, एसजीपीटी और एएलटी और एएसटी करके जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, तो उसको हेपेटाइटिस बोलते हैं, जिसमें जॉन्डिस होता भी है और नहीं भी होता है. जब आप जॉन्डिस बोलते हैं तो उसमें शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, येलोइनेसनेस आ जाती है, लेकिन ये जॉन्डिस के साथ हेपेटाइटिस होना जरूरी नहीं है. तो ये दो टर्म्स आर नॉट इक्विवेलेंट, दे आर डिफरेंट.
बट मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे हिपेटाइटिस होता है, many of these people have jaundice together and that's why in lemons many of the people they बोलते हैं कि उनको jaundice हो गया है, where हम्म। it is a just simply elevation of transaminases. तो ये दो ओके अलग चीज होती है। ओके। तो मतलब जॉन्डिस कैसे होता है और हेपेटाइटिस कैसे होता है? कभी कभी दोनों के सिम्टम शायद सेम भी हो सकते हैं, तो हाउ हाउ डज वन डिफरेंशिएट बिटवीन द टू? या जॉन्डिस जो होता है वो शरीर में बिलीरुबिन नाम का एक तत्व है, इसकी मात्रा बढ़ जाती है। प्राइमरी बिलीरुबिन मैनी इज फाउंड बाय लीवर। तो जब लीवर के डिस्फंक्शन होते हैं तो जॉन्डिस हो सकता है, जैसे हिपेटाइटिस विच विल बी डिस्कसिंग इफ रिक्वायर्ड। दूसरा है कि ये जो बाइल लीवर में बनती है, जिसको बाहर निकलने में कभी अवरोध होता है, जैसे पित्त की जो नली होती है बाइल डक्ट, उसमें कोई स्टोन आ जाता है, कोई ट्यूमर हो जाता है, तो ये पित्त की नली सूज जाती है, लीवर फंक्शन नॉर्मल होता है, फिर भी जॉन्डिस होता है। इसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोलते हैं। तीसरा है कि जिसमें ब्लड सेल किसी वजह से आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल, वो लाइस हो जाते हैं, उसकी लाइफ स्पान शॉर्ट हो जाती है, नॉर्मली जो 3 महीने की होती है, उसके बदले वो जल्दी इमोलाइज होता है, तो उसमें भी बिलीरुबिन बढ़ जाता है, जो इनडायरेक्ट बिलीरुबिन ज्यादातर होता है, इसको हिमोलिटिक जॉन्डिस बोलते हैं। तो बेसिकली वी हैव अ हिपेटोसेल्युलर जॉन्डिस विच इज बिकॉज ऑफ सम हिपेटिक डिस्फंक्शन, वो हिपेटाइटिस के कई कॉजों की वजह से होती है। दूसरा है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, जो लीवर फंक्शन और हिपेटोसाइट्स की एब्नॉर्मलिटी से नहीं होता है, लेकिन लीवर की जो डक्ट होती है उसमें कुछ अवरोध आता है। और तीसरा है हिमोलिटिक विच इज बिकॉज ऑफ सम एब्नॉर्मलिटी इन द आरबीसी, जो लीवर के रिलेटेड नहीं होती है। और ओके हिपेटाइटिस जो होता है उसमें लीवर के सेल में सूजन आ जाती है, जिसकी कई वजह होती है। कॉमनेस्ट इन्फेक्ट इज अ वायरल हिपेटाइटिस, जिसमें कई प्रकार के वायरसेस होते हैं, लेकिन नॉर्मली वी आर टॉकिंग अबाउट कॉमन वायरसेस। दूसरा अल्कोहल होता है, जो एक कॉमन कॉज होता है। और तीसरा ड्रग्स होते हैं, कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं, स्पेशली आयुर्वेदिक ड्रग्स, देयर आर one Chinese medicine, they can cause liver cell dysfunction and hepatitis. ओके। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वायरल हेपेटाइटिस आर देयर? Viral hepatitis, when we say viral hepatitis, we mean a typical virus which are affecting especially liver. And these viruses are of 5 types, that is viral hepatitis A, viral hepatitis B, viral hepatitis C, viral hepatitis D and viral hepatitis E. So ये 5 प्रकार के जो वायरसेस है वो प्राइमरी लीवर को अटैक करते हैं, और इससे जो हेपेटाइटिस होता है, जो तकलीफ होती है, उसको वायरल हेपेटाइटिस बोलते हैं। ओके। तो वायरल हेपेटाइटिस के सिम्टम्स क्या होते हैं? जनरली वायरल हेपेटाइटिस में मोस्ट ऑफ द टाइम इनिशियल सिम्टम्स आर नॉन स्पेसिफिक। पेशेंट को थोड़ा भूख नहीं लगती है, बुखार जैसा लगता है, वीकनेस लगती है, थकान हो जाती है। जैसे आगे बढ़ता है उनको थोड़ा वॉमिटिंग वगैरह शुरू हो जाते हैं, और बाद में जनरली जॉन्डिस दिखाई देता है, वह आंखों में पिलास आ जाती है, चेहरों पे पिलास हो जाती है, यूरिन येलो हो जाता है। और ये रोग आगे बढ़ता है तो देन देयर आर कॉम्प्लिकेशंस, बट रूटीन मोस्ट ऑफ दिस पेशेंट दे स्टॉप एट these symptoms where they are diagnosed to have viral hepatitis. और दूसरा ये है कि देयर आर मेनी पेशेंट्स हु मे नॉट हैव जॉन्डिस, पीलापन नहीं होता है, वो एनइक्ट्रिक पीलापन बिना जॉन्डिस बोला जाता है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको वेरी नॉन स्पेसिफिक, दे गो फॉर सम अनरिलेटेड इलनेस, और जैसे लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं तो उसमें हेपेटाइटिस मालूम पड़ता है, सो दे आर कॉल्ड एसिम्प्टोमेटिक हेपेटाइटिस। कुछ पेशेंट होते हैं वो सिम्प्टोमेटिक होते हैं, जिसमें मैंने बताया कि ये इनिशियल फेज में नोजिया, वॉमिटिंग, भूख नहीं लगना, बाद में आपको पीलिया मालूम पड़ता है। ओके। तो जैसे आपने बोला कि डायग्नोसिस में पता चलता है डायरेक्टली कभी कभी, तो इसका कोई पर्टिकुलर टेस्ट है जो डायग्नोसिस के लिए यूज होता है?
Yes, basically we go for what we call liver function test, LFT. तो liver function test में basically we look for bilirubin, जो दूसरी मात्रा में हम जॉन्डिस बोलते हैं कि bilirubin बढ़ जाता है तो पीलापन बढ़ जाता है. Most of them would have raised bilirubin, but some may not have. दूसरा ये ट्रांसअमाइनेजेस होते हैं, दैट इज द SGPT, SGOT और ALT, एडेनिन ट्रांसअमाइनेज एंड एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज, AST. अल्कलाइन फॉस्फेटेज गामा GT दूसरे हैं जो माइल्डली बढ़ते हैं हेपेटाइटिस में, और उसके एक प्रोथ्रोम्बिन टाइम करके टेस्ट होता है जो आपको सीवियरिटी बताता है. और दूसरे ब्लड रिपोर्ट में वायरल मार्कर्स होते हैं. जब आप ये वायरस का डायग्नोसिस करते हैं तो साथ में ये कौन सी वायरस होगी उसके लिए स्पेशल टेस्ट होते हैं जिसको वायरल मार्कर्स बोलते हैं. तो दे आर सीरोलॉजी मार्कर्स फॉर हेपेटाइटिस. तो वो जैसे आप सस्पेक्ट करते हो कि ये हेपेटाइटिस ए हो सकता है, बी हो सकता है, उस तरह से आप उसको चेक कर सकते हो. और इसके साथ रूटीन ब्लड टेस्ट करना भी जरूरी होता है कि साथ साथ कभी किसी को ब्लड कम हो जाता है, कोई और कॉम्प्लिकेशन होती है, क्रिएटिनिन, किडनी का भी टेस्ट करना जरूरी होता है. ओके तो जब हम डायग्नोसिस के लिए जाते हैं यूजुअली, तो वी नेवर रियलाइज दैट वी शुड गेट आवरसेल्फ चेक्ड रेगुलरली. तो इसमें हेपेटाइटिस के लिए या फिर नॉर्मली, दिस इज अ वेरी जेनरिक क्वेश्चन, हाउ ऑफन शुड अ लेमैन और हाउ ऑफन शुड अ पर्सन गो टू चेक, गेट देमसेल्व्स चेक्ड, बॉडी हेल्थ के बारे में या फिर सिंपली अ ब्लड टेस्ट? बेसिकली देयर इज नो फिक्स डेटा के भाई यही करने का होगा, ये टाइम पे करना होगा. वन थिंग इज दैट इफ यू हैव एनी फैमिली हिस्ट्री ऑफ पर्टिकुलर डिजीज तो यू शुड गेट इट चेक अर्ली. दूसरा है कि आपके फैमिली में किसी को हेपेटाइटिस मानो के बी आ गया. हेपेटाइटिस बी इज वेरी इंपॉर्टेंट, हेपेटाइटिस सी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दीज आर द डिजीज which can be controlled or even cured if you diagnose them early, but if you diagnose them late it can be fatal. तो किसी को हेपेटाइटिस बी की फैमिली में कहीं भी हिस्ट्री है तो इट इज इम्पोर्टेंट यू गो टू अ स्पेशलिस्ट एंड गेट योरसेल्फ चेक फॉर हेपेटाइटिस बी रिलेटेड सीरोलॉजिकल मार्कर, और साथ में आपके लीवर के फंक्शंस, सोनोग्राफी, जो भी डॉक्टर को अच्छा लगता है दे शुड डू इट. दूसरा है कि जिसको ऐसी कोई फैमिली में कोई लीवर कैंसर की हिस्ट्री है तो देयर इज आल्सो गुड स्टार्ट चेकिंग अर्ली से आफ्टर 30 और सो. दूसरे जो लोग हैं रूटीन हेल्थ चेकअप वी एडवाइज दैट यू शुड डू एटलीस्ट एज अ बेसलाइन, नॉट वंस अ ईयर. एक का बेसलाइन, जब भी आप डॉक्टर के पास एक बार गए तो पहले आप आपका रूटीन ब्लड चेकअप, उसमें लीवर फंक्शन टेस्ट में नॉर्मली वी गो फॉर ट्रांसअमाइनेज, दैट इज SGOT, SGPT और हेपेटाइटिस बी, जो कि भारत में तकरीबन 1% लोगों को छुपा हो सकता है. तो यू कैन बी देयर एट एनी टाइम हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव. तो ये जो टेस्ट है वो आप एक बार कोई भी डॉक्टर के पास जाओ तो पहले एक बार बेसलाइन कर लेना जरूरी है. और इफ इट इज नॉर्मल, योर लाइफस्टाइल इज नॉर्मल, देन यू नीड नॉट चेक योर लीवर एवरी नाउ एंड देन. बट वो एबनॉर्मल है तो फिर वो डॉक्टर की सलाह के मुताबिक उसका आगे टेस्ट करके जैसे जरूरत है, एवरी 6 months sometimes you need to check your blood test and a sonography for the liver. But otherwise in routine, or you are on some medication, जैसे कि आप टीबी की दवाई ले रहे हो, कुछ ऐसी कार्डियक दवाई है एम्लोडेरन ऐसी जिसमें लिवर डिस्फंक्शन हो सकता है, कुछ स्किन के लिए दवाई लेते हैं जैसे मिथोट्रेक्सेट है. तो ऐसे मरीजों को एवरी 6 months their liver function should be tested. Okay, all right. What kind of diet should a person follow जिसको हेपेटाइटिस डायग्नोस हुआ है? हेपेटाइटिस डायग्नोस हुआ है तो इफ यू आर, इट इज डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ हेपेटाइटिस. इफ यू हैव एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस, जैसे बताया कि पेशेंट को पहले कुछ नहीं था, 4-5 दिन बुखार आया और बस पीलापन लगना, और जब टेस्ट किया तो जॉन्डिस आया और उसमें हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस ई का निदान हुआ या हेपेटाइटिस बी का निदान हुआ. तो एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस है उसमें टेम्पररी आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है. तो वी आस्क यू टू फॉलो अ लाइट डाइट. हैवी मील से पेट में आपको तकलीफ होती है और नॉर्मली
ये डिजीज की वजह से भूख कम हो जाती है, साथ में ऐसा खाना खाते हो तो आपको पेट में तकलीफ होती है, तो दैट्स व्हाई यू शुड अवॉइड हैवी फूड। लेकिन ये नहीं खाना, कोई स्पेसिफिक डाइट खाना, ऐसा कोई लिवर डिजीज में नहीं है। ओनली थिंग इज कि जब जॉन्डिस होता है तो आपको शरीर में फैट का मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, इसलिए हैवी फैट्स टू बी अवॉइडेड। बट आपको पूरी फैट को अवॉइड करना बिल्कुल, नॉट अ ड्रॉप ऑफ ऑयल इज नॉट रिक्वायर्ड। तो सो एक हेल्दी खाना आप ले सकते हो। तो मतलब इज मिल्क ओके? मिल्क हम पी सकते हैं while if we are diagnosed with I think Vrunda, this is a very hepatitis? good question, because now and then when we come across patients of jaundice, hepatitis for that matter, most of them say that वो बिल्कुल मिल्क नहीं लेते हैं क्योंकि जिससे कि मिल्क से जॉन्डिस बढ़ता है या तकलीफ होती है। आई थिंक दिस इज अ मिथ एंड इट हैज टू बी रिमूव्ड। मिल्क से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ओनली थिंग इफ मिल्क हैज गॉट लॉट ऑफ फैट इन इट, समटाइम्स इट कॉजेज डिस्पेप्सिया, मतलब पेट में आपको पाचन में तकलीफ होती है, तो वी एडवाइज दैट यू कैन टेक मिल्क विच इज अ स्किम मिल्क, उसमें से चर्बी निकाल दो, मिल्क लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और Okay. इनफैक्ट ड्यूरिंग हेपेटाइटिस वी एडवाइज यू टू टेक अ हेल्दी बैलेंस्ड डाइट, डोंट स्टार्व योरसेल्फ, except there are few patients who have milk allergy, which is a different game altogether. But otherwise, I think it is a myth, and you must take milk as you can tolerate. Okay. What type of rest is advised? As in complete bed rest होना चाहिए या फिर minimal movement? जिन पेशेंट्स को डायग्नोज हुआ है हेपेटाइटिस, उनके लिए क्या रेस्ट के लिए एडवाइस आप दे सकते हो? इस पे आई थिंक आई वुड एलोबरेट लिटिल मोर। इसमें एक तो है या एक्यूट हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस, जैसे रूटीन जॉन्डिस होता है, बिलिरुबिन बढ़ जाता है, आंखों में पीलास लगती है, आपको वीकनेस लगती है, तो ऐसे पेशेंट में, बिकॉज हेपेटाइटिस में इट इज से दैट रेस्ट इज द बेस्ट मेडिसिन, तो जिसको जॉन्डिस है, एक्यूट हेपेटाइटिस है, आपको वीकनेस लगती है, देन यू हैव टू टेक रेस्ट एट होम, वर्क एट होम ऑल्सो। यू शुड नॉट गेट टायर्ड। आपको लगता है कि आप बैठ के टायर्ड हो जाते हैं तो आपको सो जाना चाहिए। आप लगता है कि आप घर में मूव करते हो, आपको कोई टायर्डनेस नहीं लगती है, तो देयर इज नो नीड टू हैव अ बेड रेस्ट। ओनली थिंग बिकॉज वायरस आपको फटिगेबिलिटी वगैरह लगती है, तो वी से दैट यू शुड नॉट डू वर्क। आपको स्ट्रेनियस वर्क नहीं चाहना चाहिए, बाहर जाना, मूवमेंट करना जिसमें थकान लग जाती है, तो दैट यू हैव टू avoid, and that is as long as your bilirubin and transaminases are significantly elevated. दूसरा है हेपेटाइटिस विच इज इंसिडेंटली डिटेक्टेड, जिसमें जैसे आपके ट्रांसअमाइनेजेस ज्यादा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डॉक्टर के पास जाते हो और उनको लगता है कि आपका एसजीओटी एसजीपीटी 100-200 है, आपको कोई तकलीफ नहीं है, इन दैट केस यू नीड नॉट टेक रेस्ट। ओनली थिंग अवॉइड एनी स्ट्रेनियस एक्टिविटी, बट रूटीन आपकी एक्टिविटी में कोई रेस्ट लेने की जरूरत उस टाइम नहीं आती है। तो इट इज हाईली इंडिविजुअलाइज, आपकी हेपेटाइटिस की कॉज क्या है, उसकी सीवियरिटी क्या है, आपको उसके साथ कोई कोमॉर्बिडिटी या दूसरी कोई तकलीफ है कि नहीं, वो सब देख के देयर इज नो ब्लैंकेट ट्रीटमेंट के आप घर में ही बिस्तर पे ही पड़े रहो। हाँ, बट इट इज टोटली इंडिविजुअलाइज, सो इट इज डिपेंड्स ऑन योर सीवियरिटी। ओके. How can we avoid the spread of hepatitis? Or before that, how is hepatitis spread? Yeah, see, hepatitis, as I said, there are 5 types of hepatitis. Hepatitis viruses, which are the root cause of hepatitis. तो ये 5 प्रकार की जो वायरसेस है, उसमें हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई, दे आर कॉल्ड एंट्रिकली ट्रांसमिटेड। तो ये खाद्य पदार्थों से और एडल्टरेटेड वाटर से होता है उसका प्लेग। तो इसमें और मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे हम ये आउटब्रेक देखते हैं, एपिडेमिक देखते हैं, जैसे बड़ौदा में कुछ साल पहले हुआ था, ये कुछ एरियाज में ऐसा कॉर्पोरेशन के पानी में कुछ गड़बड़ी हो गई थी, और देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु वर अफेक्टेड, दे आर अफेक्टेड इन अ फैमिली, आपके पूरे मोहल्ले में होता है। तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अवॉइड एडल्टरेटेड वाटर। एक तो वाटर इस समय आपको बॉईल करके या फिर
एक उबला हुआ पानी पीना जरूरी बनता है। और अदरवाइज यू हैव अ गुड फिल्टर एट योर होम विच कैन किल द viruses. So water is very important material which can spread. दूसरा है food. There are a lot of food handlers because this is called as the fecal-oral transmission. ये viruses आपके स्टूल में सेड होते हैं और किसी वजह से, जैसे आप टॉयलेट जाके हाथ पूरी तरह से नहीं स्वच्छ कर पाते हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जो फूड इंडस्ट्री में है, उनको हेपेटाइटिस है और वो अपने हाथ ठीक तरह से साफ नहीं करते हैं, तो दे कैन स्प्रेड टू लॉट ऑफ पीपल बिकॉज ऑफ द एडल्टरेशन ऑफ द फूड। तो मोस्टली ये हेपेटाइटिस ए एंड ई में आपको फूड और वाटर का बहुत ही ध्यान रखना जरूरी है, उसका प्रिवेंट कर सकते हैं। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी एंड हेपेटाइटिस डी, दे आर कॉल्ड पैरेंटली ट्रांसमिटेड। They are transmitted by blood and body fluid. So if you have hepatitis B, you can spread your hepatitis B to other people if you inadvertently, आपका ब्लड किसी के पास पहुंच जाता है, या आपको कहीं इंजरी होती है और आपका ब्लड का एक ड्रॉप कहीं गिरता है और दूसरे व्यक्ति अपना हाथ रख देता है वहां और उसके हाथ में कहीं थोड़ी छोटी मोटी इंजरी होती है, तो वो स्प्रेड कर सकता है। सिमिलरली आप कोई बाहर जाके सेविंग कराते हैं एंड इफ यू आर यूजिंग द सेम ब्लेड, आपको हेपेटाइटिस बी है, वही ब्लेड से दूसरे व्यक्ति को होता है। तीसरा है का ये टैटूइंग की एक प्रोसेस होती है जिसमें यू आर यूजिंग अ शार्प नीडल, और इफ दैट इज यूज्ड इन द सेम नीडल इज यूज्ड देन इट कैन कॉज। इन पास्ट पीपल वर यूजिंग द सेम नीडल फॉर इंजेक्शन, तो वो इंजेक्शन इफ द नीडल इज यूज्ड सेम नीडल डिस्पोजेबल, इसलिए अब नाउ वी आर यूजिंग डिस्पोजेबल वन, तो वो नीडल से हो सकता है। अभी ब्लड बैंक में मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्टली ब्लड बैंक में हैव गुड टेस्ट टू कैरी आउट, बट स्टिल छोटी जगह पे कुछ ब्लड बैंक ऐसे होते हैं उसमें ठीक तरह से ये वायरसेस का टेस्ट नहीं होता है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ये हो सकता है। सेक्सुअल ट्रांसमिशन इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉज फॉर हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी। और तीसरा उसमें एक वर्टिकल ट्रांसमिशन है कि जिसमें मदर पॉजिटिव है तो वो अपने न्यूबॉर्न बेबी में ट्रांसमिट कर सकती है। तो ये दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट साइट्स वेयर इट कैन बी स्प्रेडेड, और इसलिए अभी और प्रेग्नेंट लेडीज का टेस्ट किया जाता है और इनमें हो तो देयर आर वेज टू प्रिवेंट द डिजीज इन द न्यूबॉर्न। Okay. Are hepatitis vaccines useful? I think this is a very important thing. Hepatitis, जैसे मैंने बताया कि hepatitis, we have 5 types of hepatitis. उसमें presently we have vaccine for hepatitis A and hepatitis B. बाकी के लिए अभी हमारे कंट्री में वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, और हेपेटाइटिस सी के लिए तो अभी तक कोई वैक्सीन बना ही नहीं है। तो हेपेटाइटिस ए जनरली अकर्स इन द चाइल्डहुड मोस्ट ऑफ द टाइम। अब हम एडल्ट में भी उसको देखते हैं बिकॉज ऑफ इम्प्रूव सैनिटेशन, और हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन इफेक्टिव है। तो नाउ मोस्ट ऑफ द पीडियाट्रिशियन दे एडवोकेट हेपेटाइटिस ए वैक्सीन टू द यंग वंस। यू कैन हैव द टेस्टिंग वेदर, क्योंकि कभी कुछ लोगों में हेपेटाइटिस ए हो जाता है, उनको पता भी नहीं चलता है, तो उसका टेस्ट आता है कि आपको पास्ट में हेपेटाइटिस ए हो गया या नहीं। दिस इज यूजफुल फॉर एडल्ट वन। यंग पर्सन, पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में जनरली यू कैन यूज द वैक्सीन स्ट्रेट, और इट इज अ वेरी इफेक्टिव वैक्सीन। और हेपेटाइटिस बी इनफैक्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज, और उसका वैक्सीन ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इनफैक्ट नाउ वी से एक तो ऑल न्यूबॉर्न, उनको अभी हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन देना बहुत ही जरूरी है। मोस्ट ऑफ द पीडियाट्रिशियन यूज, बट स्टिल इट इज अ वॉलंटरी वन। या एडल्ट में जनरली एज आई सेड कि हमारे कंट्री में तकरीबन 1% पॉपुलेशन इज कैरिंग हेपेटाइटिस बी, एंड एक बार आपको हेपेटाइटिस बी आप कैरियर बन जाते हैं तो वॉट एवर यू डू उसकी कुछ कॉम्प्लिकेशन आपको जरूर हो सकती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए वैक्सीन इज अ मस्ट, एंड वी से दैट ऑल प्रॉब्ली ऑल हेल्थ केयर में जो भी काम करते हैं उनको वैक्सीन लेना बहुत ही जरूरी है। बट फॉर दैट मैटर वी से दैट जो कि अभी ये उसकी कॉस्ट भी काफ़ी कम हो गई है,
तो आई सजेस्ट कि ऑल शुड गेट देमसेल्फ टेस्टेड पहले कि आपको कोई हेपेटाइटिस बी की साइलेंट कैरियर तो नहीं है, और यदि नहीं है तो उसके 3 डोज वैक्सीन लेने से 90% चांसेस है कि आप हेपेटाइटिस बी से बचते रहेंगे। ओके, अपार्ट फ्रॉम वैक्सीन्स कोई ड्रग रिलेटेड ट्रीटमेंट है, मेडिकेशन या कुछ जो सिम्टम्स को सबड्यू कर सके? आई एम अफ्रेड हेपेटाइटिस जो कॉमन टाइप के होते हैं, हेपेटाइटिस ई और हेपेटाइटिस ई, जो रूटीनली हम जॉन्डिस ट्रीट करते हैं मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, उसमें देयर इज नो स्पेसिफिक मेडिकेशन, इट इज द ट्रीटमेंट ऑफ द सिम्टम, रेस्ट, कुछ गुड फूड, and if there is a complication then you have to have a special medication, but nothing for the hepatitis. But now we have a medicine available for hepatitis C. One time this was one of the leading cause of a lot of liver disease, and treatment was very difficult, very costly. But now we have medicine which can cure your hepatitis C in 3 to 6 months in as many as about 94 to 95% of the patient if you detect it at early stage. Okay. Hepatitis B के लिए we have good drugs available, but most of these drugs will control the hepatitis B. आपका डीएनए जो एक मार्कर होता है उसको एकदम कम या नेगेटिव कर सकता है, but most of the time most of these patients will need to continue this medication for a long time or sometime lifelong, except in acute hepatitis B जिसका स्पेसिफिक डायग्नोसिस होता है कि ये एक्यूट हेपेटाइटिस बी है, जिसमें हेपेटाइटिस बी के मार्कर्स HbS नेगेटिव हो जाता है और नेगेटिव रहता है, तो उसमें इनिशियल स्टेज में जनरली कोई ट्रीटमेंट नहीं होती है, इवन इट इज कॉम्प्लिकेटेड वन वुड ट्रीट इट। बट क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी और क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी के लिए नाउ वी हैव गुड मेडिसिन टू कंट्रोल, और specifically hepatitis C can be now curable if you diagnose in an early stage, and it can prevent lot of other complications related to advanced liver disease. Okay. What is non-alcoholic steatohepatitis? Non-alcoholic steatohepatitis, which in short term we call it as a NASH, और दूसरी उसकी टर्म है non-alcoholic fatty liver disease, which is a broader spectrum, NFLD. Now, I think this in fact is a very important question, Brundra, because nowadays there is probably an epidemic of non-alcoholic liver disease, जिसमें most of the time we come across the patient कि वो रेगुलर चेकअप के लिए, हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं और उनके ब्लड में SGOT, SGPT, ALT, AST ज्यादा आते हैं। नॉर्मली उनकी वैल्यू 30-40 यूनिट्स के आजू बाजू होती है, जिसके बदले इनकी वैल्यू 50 से 200 तक की हो जाती है। और दूसरा है कि मैनी टाइम्स नाउ पेट के कोई भी दर्द के लिए या एज अ रूटीन स्क्रीनिंग अल्ट्रासोनोग्राफी होती है, जिसमें आपके सोनोलॉजिस्ट बोलते हैं कि आपको फैटी लीवर है। तो ये फैटी लीवर या रेस ट्रांसअमाइनेजेस जिसमें आपको कोई सिम्टम नहीं होता है, दैट इज प्रॉब्ली वन ऑफ द कॉमनेस्ट डिसऑर्डर ऑफ द लिवर एट प्रेजेंट कंपेयर टू अदर हेपेटाइटिस और अदर थिंग। एंड इसमें व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस, कि इसमें आप यदि लीवर में से बायोप्सी करते हैं, लीवर के टिश्यू को देखते हो, तो उसमें जो चेंजेस होता है वो जो लोग ज्यादा मात्रा में अल्कोहल लेता है और अल्कोहल की वजह से जो चेंजेस होते हैं वैसे ही चेंजेस इसमें लीवर के अंदर मालूम पड़ता है। बट देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ टेकिंग अल्कोहल इन दिस पेशेंट, दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज अ नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस। जैसे कि हेपेटाइटिस हुआ है बिकॉज ऑफ स्टीएटोस्टेसिस ऑफ द फैट इन द लीवर। तो ये एक अभी this is one of the important cause of asymptomatic liver disease, where it can in further when it advances it can cause all sorts of complications of liver disease, where you can develop cirrhosis, jaundice, and even the liver cancer. So it is very important to diagnose it at the early stage. Right. So the last question that I have is,
how do we people protect our liver? Because at times we never understand ki what are we eating, what are we consuming, that that may affect our liver indirectly. So how do we do it? How do we protect our liver? I think, as I said in the beginning, that liver is a very very important organ for our metabolism. शरीर में आप जो भी कुछ खाते पीते हैं तो वो लीवर से ही आगे जाता है. There Hmm. are, so what are the important thing? एक तो things which are very bad for your liver. उसमें एक तो अल्कोहल है. Hmm. Alcohol, generally we say that it's a bad for the liver, and दो जो लोग ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल का सेवन करते हैं उनके लिए लिवर डिजीज, सिरोसिस, कॉम्प्लिकेशंस, कैंसर वगैरह होने के भय बहुत ज़्यादा होता है. देयर इज Hmm. सम safe limit of alcohol, but most of the people would not follow it, and hence we say that you should not have alcohol at all. Okay. Second, there are certain medication which can affect the liver. So when you are taking any medicine, make it sure that this medicine has no dysfunction or no effect on the liver. And if there are certain medicine which can affect, so when your Hmm. doctor says you have to do a certain test at a specific interval. तीसरा है, there are certain viruses which can affect your liver. As I said, hepatitis A and hepatitis B के vaccine available है. So I Hmm. think everybody must test themselves कि उनको ये वैक्सीन की जरूरत है कि नहीं. Everybody should not take, but you should go to a specialist, ask them, they will do some test and then tell you okay, whether you can take, because ये easily, now they are not costly, it's a simple thing, doesn't have any side effects, but it can protect your liver from the dreaded disease. Third, Okay. most of these fatty liver, as we say, steatohepatitis, they happen because of the fatty liver, and fatty liver in most of the cases is because of obesity. So Hmm. you have to prevent obesity. आप overweight है तो you must do exercise. ऐसा one thing I must make it clear कि when you have steatohepatitis NASH, आपके transaminases ज़्यादा है. Hepatitis हम बोलते हैं, लेकिन this is because of overweight, and in that case exercise is not a problem. You can do all the exercise. Only thing you have to follow the instruction. You have to, if you lose at least 10% of your weight, do about uh, 5 days a week exercise. That would be sufficient to protect your liver. Huh? Hmm. So diet, healthy diet basically would mean that you should avoid the excess of calorie, excess of sugar. All extra sugar must be avoided. Oil, most of the time you have oil in a routine amount should not be the problem, but there are certain types of oil which are not good and you should avoid them. Right. Okay. Great. So now I think we can take up audience questions. The first question is asked by Kripa. She is asking, can a person spread hepatitis and not know it? Yeah, this is very, very important, and this is true because in most of the patients with hepatitis, when you have just like a COVID, when we say corona, there are half of the patients are asymptomatic, they don't know they have the disease. Similarly, in hepatitis A and E, it is said that more than half of these patients will not have any symptoms and they can spread, and that's why the personal hygiene is very, very important. Similarly, patients with hepatitis B and C, many of them have no symptoms whatsoever. It is only diagnosed if you do testing. Many times you go because of pre-employment requirement, or you want to go, you donate the blood, and at that time you are saying that you have hepatitis B, because these are called as the silent carrier, and they are the most dangerous individual because they can spread without their knowledge to a lot of people. So I think this question is very pertinent and very important. Right. The next question is by Darshan. He's asking, how common is hepatitis B in India? Darshan, I think hepatitis B is very common. As I said, there are
different states, different statistics are there, but 0.4 to up to 2% of the individual are hepatitis B carrier. That means they don't know that they have hepatitis B, they have no symptoms whatsoever, and they are the one where they are tested. Also in our practice, we see fair number of patients who come with the end-stage liver disease, complications of liver disease because of forming cirrhosis. Many of them come in a last stage where we diagnose them to have a liver cancer, and the cause is hepatitis B. So I think it is very, very common in India. Right. The next question is by Ria. What type of viral hepatitis is infectious or contagious? See, basically, all these viral hepatitis, common viral hepatitis that we are speaking, they are infectious or contagious. Only the mode of spread are different. Hepatitis A and E, they are called as the fecal-oral route. So they will be spread with the contaminated food and water, while hepatitis B, C, and D, they are contagious by the way of blood and body fluid. That means they can Mhm. spread by blood, serum, semen. In fact, they can spread through saliva also. So there are a lot of body fluids we can transmit your hepatitis B, and hepatitis A and E by food and water. But they are all Okay. contagious or infectious. Okay. Neeraj is asking, can I donate blood or semen if I have hepatitis B? No, you cannot. Okay. Um, is there any homeopathy medicine that can cure hepatitis B or homeopathy Sanjay, I treatment? think I have no knowledge about homeopathy, so I cannot authentically say where he can cure or not. But there are no authentic paper, and we haven't seen any patient being cured with homeopathy. Okay. Ishita is asking, how soon after exposure to viral hepatitis will symptoms appear? Yeah, in fact, this is a good question. Those who become symptomatic, so there are many people who are asymptomatic all throughout their course of illness, but those who become symptomatic for hepatitis uh, E and hepatitis A, the period is from in weeks time. They can be symptomatic within few weeks to few days. While patient with hepatitis B, the symptoms appear after 50 to 150 days. That means they can be infectious. Symptoms will appear quite late, up to 6 months after the exposure. And the Okay, hepatitis C comes in between about 3 months. But many of the patients with hepatitis C never show any symptoms. great, great. I think this was a very informative session that we had today, and we have had a very good fun. Okay, there is one more question that Jaideep is asking. Can a baby be protected from getting hepatitis B from its mother during birth? Yeah, I think this is what we routinely do. We have the obstetrician who refers us, and we test the mother, see how infective they are, what is the viral load in them, and accordingly, many of them we advise them mother to be on the treatment. Sometimes mother do not have a active viral load, and at that time mother doesn't require treatment. But all newborn baby will require a specific immunoglobulin and a hepatitis B vaccine starting day one of the birth. And there is a specific schedule which most of us will follow in conjunction with the obstetrician. Okay. Oh, we still have more questions coming. How likely is it that acute hepatitis will be chronic? Yeah, I think in patients who have hepatitis A and hepatitis E, these viruses generally have an acute course only. They do not become chronic. Very rarely you find hepatitis E being chronic, but there are special situations. So by and large, acute viral hepatitis A and E, they are only acute, not the chronic one. While in patients with hepatitis B,
about acute hepatitis B, 5% of them becomes chronic one, and it depends at what age it is contracted. A patient or a newborn can have 90 or 100% chance of becoming chronic. A young adult becomes chronic, chances about 10%, while adult chances 5% that they will become chronic for hepatitis B. While for hepatitis C, it is about 70-75% of the patient will become carrier or chronic hepatitis C. So it Hmm. depends on type of hepatitis. Okay. Can hepatitis spread through food? I think I have discussed these, that hepatitis A and E, it is a Yes. fecal-oral transmission. So if food get contaminated by the feces or the contaminated water, then this food can spread hepatitis A and hepatitis E. Okay. Uh, I don't think we have any more questions now. Yes. So, thank you so much, sir. This was a very good session. I think we have very less knowledge about hepatitis if we see it that way. So, thank you so much for your time. Uh, yeah. Thank you, Vrundra, and I thanks all the listener, and would be glad to answer any of your query on our website or on our email. You can be in contact with us for any of the queries. Thank you. Thank you, sir.